my dear, how are you all? Hope you all are quite well. First of all, I welcome you all on your own YouTube channel, Your Classroom at Home. We have already covered our first part of lesson number 5, and now we are going to start second part from activity 6. Let's start. Activity 6. Explain the following statements in your own words. हाँ जी, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਚੇ स्टेटमेंट्स ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1, and if he killed the buck he would feel like a beast. Number 2, and something grew in him. Number 3, and he felt the deer's lack of fear. है ना, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 6, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਸਟ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ 'ਚ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਐਂਡ ਇਫ ਹੀ ਕਿਲਡ ਦ ਬਕ ਹੀ ਵੁੱਡ ਫੀਲ ਲਾਈਕ ਅ ਬੀਸਟ, ਵੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਬਕ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਆ। ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਦੀ, ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ, ਇਫ ਹੀ ਹੈਡ ਕਿਲਡ ਦ ਬਕ he might feel himself as a beast and criminal who didn't have a sense of pity. ठीक है, कि जेकर वो मार दिंदा बक नूं तां उहनूं अपने आप नूं महसूस हुंदा कि वो एक जानवर आ, ठीक है, जिहड़ा कि जिहदे अंदर कोई भी दया नहीं हैगी, है ना। क्रिमिनल भी हुंदे आ जिहड़े जुल्म करन वाले हुंदे आ, है ना, क्राइम करते आ, उहनूं क्रिमिनल कह दिंदे आपां, ठीक है। ये लिख सकते हैं। अगे देख लो नंबर 2, एंड समथिंग ग्रू इन हिम, कि उन्होंने लग्या सी ना उहदे अंदर कुछ चेंज हो रहा जां कुछ होर जिहड़ियां फीलिंग्स आ उहदे अंदर आ रही हैं, है ना। वैन द डियर सा हिम विद प्लैडिंग आइज एन इमोशन ऑफ पिटी ग्रू इन हिम एंड ही फॉरगेट टू हंट देम। हाँ जी, जदों उहने देखिया सी ना हिरन नूं, उहदियां अखां 'च की सी, है ना, भी बेनती कर रहा सी ओहनूं, है ना, तो ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਹੰਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੰਬਰ 3 ਦੇਖ ਲਓ, ਐਂਡ ਹੀ ਫੈਲਟ ਦ ਡੀਅਰਸ ਲੈਕ ਆਫ ਫੀਅਰ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ, ਵੈਨ ਹੀ ਫੈਡ ਦ ਡੀਅਰ ਹੀ ਕੁਡ ਫੀਲ ਦੈਟ ਦ ਡੀਅਰ ਹੈਜ਼ ਲੋਸਟ इट्स फेयर ऑफ हंटर एंड स्टार्टेड इंजॉइंग हिज कंपनी, ठीक है। तो जो उन्होंने खवाया सीगा ना, गिरियां खवाइया सी हिरन नूं, तो उदों ने महसूस किया सी कि जिहड़ा डीयर आ हुण उहदे अंदर शिकारी दे प्रति डर दी भावना नहीं हैगी, ते ओह उहदा साथ इंजॉय कर रहा, ठीक है, भी उहदे नाल ओह हुण खुश आ, ठीक है। हाँ जी, हुण नैक्सट है लर्निंग लैंगुएज डिटर्मिनर्स। हुण आपां डिटर्मिनर्स करने आ, ठीक है, ठीक है। डिटर्मिनर्स की होंदे आ, डिटर्मिनर्स जिहड़े होंदे आ, डिटर्मिनर इज़ अ वर्ड दैट इज़ प्लेस्ड जस्ट बिफोर अ नाउन टू गिव एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द नाउन एंड दैट्स वाई दे आर ऑल्सो क्लासीफाइड एज एडजेक्टिव्स, ठीक है। डिटर्मिनर्स हुण की होंदे आ कि डिटर्मिनर एक इस तरह का शब्द हुंदा जिहड़ा कि किसी नाउन दे अगे लगदा आ, ठीक है, नाउन दे अगे यूज हुंदा ते ओह नाउन दे बारे कुछ होर जानकारी आपां नूं दिंदा है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिंदा है आपां नूं, ठीक है। तो इसे करके जिहड़े डिटर्मिनर्स हुंदे आ इन्हां नूं आपां की कह दिंदे आ, एडजेक्टिव्स भी कह दिंदे आ, ठीक है। हाँ जी, हुण देखो, लेट अस लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नंबर 1, द रैबिट फाउंड इट्स होल। नंबर 2, आई एट द वनीला केक इन द इवनिंग। नंबर 3, metal cans are recyclable. Number 4, the metal cans are recyclable. The bold words above are determiners. ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਉੱਪਰ bold words ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ determiners, ਹੈ ਨਾ। The bold words above are determiners, ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਡਾਰਕ ਕਰਕੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ bold words ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ determiners ਹੈਗੇ ਆ। Determiners are words like the, an, this or some, ठीक है, that always come before a noun, ठीक है। मैं दस्सिया ना तुहानूं कि नाउन तो पहला आउंदे आ, है ना, जिहड़े वर्ड्स हुंदे आ
or before any other adjectives used for the noun। एक तो noun तो पहला आउंदे आ ते दूसरा जे कोई adjective noun की तरह यूज़ होया है ना, जिहड़ा noun दे लिए यूज़ होया कोई भी adjective, ठीक है, उस तो भी पहला आउंदे आ ये हमेशा determiners। Determiners are needed before a singular noun, but we may or may not use it when talking about plural nouns। हाँ जी, हुण की है कि डिटर्मिनर्स जिहड़े हुंदे आ ਇਹ ਮੋਸਟਲੀ ਸਿੰਗੂਲਰ ਨਾउन ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਪਲੂਰਲ ਨਾउन ਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਦੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਐਂਡ ਯੂਸੇਜ ਆਫ ਕਾਮਨ ਡਿਟਰਮੀਨਰ ਦ ਇਨ ਦ ਸੈਂਟੈਂਸ ਅਬਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਪਰ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਮਨ ਡਿਟਰਮੀਨਰ ਜਿਹੜਾ ਦ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। In all the examples, the determiner is placed before the noun or noun phrase, whether the noun is the subject or the object। हाँ जी, हुण जिहड़ा determiner आ वो हमेशा ही उपर noun तो पहला यूज़ होया या noun phrase तो पहला यूज़ होया, ठीक है। तो जदों भी noun जिहड़ा वो subject, जिथे भी noun जिहड़ा वो subject या object दे रूप दे विच आ, ठीक है। ਹੁਣ ਨਾउन फ्रेज वर्ड आया इत्थे एक भी नाउन फ्रेज जिहड़ा वो की हुंदा आ। नाउन फ्रेज की हुंदा अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग अ नाउन एंड फंक्शनिंग इन अ सेंटेंस एज सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और एज प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ठीक है कि अजिहा शब्द जो शब्दां दा ग्रुप जिहड़ा कि जिहदे विच जिहड़ा कि नाउन हुंदा आ, ठीक है, ते सेंटेंस दे विच ओह किहड़ा काम करदा, फंक्शन उहदा किहड़ा हुंदा, चाहे वो सबजैक्ट भी हो सकता, ठीक है, ऑब्जैक्ट भी हो सकता, जां वो प्रपोजिशनल ऑब्जैक्ट भी हो सकता किसी सेंटेंस दे विच। ठीक है, तो हुण आपां नैक्सट देखते हैं। इन द फर्स्ट एग्जाम्पल इट कम्स डायरैक्टली बिफोर द नाउन। ठीक है, कहते कि जिहड़ा फर्स्ट एग्जाम्पल है जिहड़ी उपर आपां देखी आ, उह च आपां देखिया कि जिहड़ा डिटर्मिनर आ ਉਹ डायरैक्टली नाउन तो पहला यूज़ होया। आ देखो हुण नंबर 1 दे विच, ठीक है, आ नंबर 1 सी ना, आ नंबर 1 सी ना, इत्थे देखो इत्थे हुण द यूज़ होया सी ना, किहदे तो पहला, इहदे तो पहला रैबिट तो, है ना, रैबिट नाउन सी, नाउन तो बिल्कुल पहला यूज़ होया ना इत्थे। ठीक है, अगे देखते हैं नंबर 2। इन द सैकेंड एग्जाम्पल इट कम्स बिफोर द एडजेक्टिव वैनिला दैट इंट्रोड्यूसिस द नाउन केक। हाँ जी, हुण दूसरे सेंटेंस दे विच देखो आ दूसरा सीगा ना, इत्थे की आ, इत्थे द यूज़ होया किहदे तो पहला, इहदे तो पहला वैनिला। ठीक है, तो इत्थे वैनिला की सीगा, किहनूं रिप्रेजेंट कर रहा सी, केक नूं, ते वैनिला की सी इत्थे एडजेक्टिव सीगा। ठीक है, इत्थे यूज़ होया। नैक्सट हैगा नंबर 3। इन द थर्ड एग्जाम्पल देयर इज़ नो डिटर्मिनर। ठीक है, एज डिटर्मिनर आर ऑप्शनल फॉर प्लूरल नाउन्स एंड नाउन फ्रेजेस। ठीक है, तो थर्ड एग्जाम्पल जी उपर दी हुई सी, कहते कि उत्थे जिहड़ा कोई भी डिटर्मिनर यूज़ नहीं होया, क्योंकि जिहड़े डिटर्मिनर्स हुंदे आ वो प्लूरल नाउन्स दे लई जां नाउन फ्रेजेस दे लई ऑप्शनल हुंदे आ, भी आपां उहनां नूं लगा भी सकदे आ ते नहीं भी लगा सकते। आपां फिर दोनों इकट्ठियां देखते हैं। उपर एग्जाम्पल नैक्सट भी देख लो। नंबर 4। इन द फोर्थ एग्जाम्पल अ डिटर्मिनर has been asked to refer to the specific noun, that is the metal cans that are here with us। ठीक है, थर्ड ते फोर्थ भी एक बारी देख लो। हाँ जी, हुण थर्ड दे विच देखो इत्थे मैटल्स जिहड़ा नंबर 3 सी, इत्थे कोई भी डिटर्मिनर यूज़ नहीं होया। ठीक है, इत्थे सी मैटल केन्स, प्लूरल सी ना, ये इत्थे नहीं यूज़ होया, बट नैक्सट दे विच जिहड़ा आ ओह यूज़ होया। ठीक है, द मैटल केन्स आर रीसाइकलेबल। क्लीयर होया हुण भी ये ऑप्शनल आ, किते यूज़ होया किते नहीं होया। ठीक है, जदों आपां स्पैसीफिक किसी नाउन की गल करते हैं, ठीक है, उत्थे यूज़ करते हैं आपां, जिथे कॉमन यूज़ हुंदा आ उत्थे आपां उहनूं यूज़ नहीं करते। देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स इन इंग्लिश: आर्टिकल, डेमोनस्ट्रेटिव, क्वांटिफायर्स एंड पोजेसिव। ਜਿਹੜੇ डिटर्मिनर्स आ
ਇਹ 4 ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿਹੜੇ ਕੀ ਆ 4 ਟਾਈਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਰਟੀਕਲਸ, ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਟਿਵਸ, ਕੁਆਂਟੀਫਾਇਰਸ ਐਂਡ ਪੋਜ਼ੈਸਿਵਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਆਰਟੀਕਲਸ। ਆਰਟੀਕਲਸ ਆਰ ਅਮੰਗ ਦ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ ਆਫ ਦ ਡਿਟਰਮੀਨਰਸ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਆ ਉਹ ਡਿਟਰਮੀਨਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮਨ ਆ। ਐ ਯੂ ਆਰ ਅਵੇਅਰ ਦੇਅਰ ਆਰ 3 ਸਿੰਗੂਲਰ ਆਰਟੀਕਲਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ 3 ਸਿੰਗੂਲਰ ਆਰਟੀਕਲਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਅ, ਇੱਕ ਐਨ ਤੇ ਇੱਕ ਦ। ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਹੋ ਗਏ, ਤਿੰਨੇ ਇਹ ਸਿੰਗੂਲਰ ਆਰਟੀਕਲਸ ਆ। ਆਰਟੀਕਲ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਵਿਚ ਨਾਊਨ ਦ ਸਪੀਕਰ ਇਜ਼ ਰੈਫਰਿੰਗ ਟੂ। ਹੁਣ ਆਰਟੀਕਲਸ ਕੀ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਪੀਕਰ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਨਾਊਨ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਏ ਐਂਡ ਐਨ ਆਰ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਆਰਟੀਕਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅ ਤੇ ਐਨ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਆਰਟੀਕਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ, they are used when you are talking about a general version of the noun। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਏ ਤੇ ਐਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਆਰਟੀਕਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, they are used when you are talking about a general version। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਮ ਦੀ ਜਨਰਲੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਏ ਜਾਂ ਐਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਏ ਐਨ ਮਤਲਬ ਏ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਐਨ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨੰਬਰ 1, ਅ ਕੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਕਿਊਟ ਐਨੀਮਲ। ਨੰਬਰ 2, an eagle can see the ground from the sky। In these examples the sentence is talking about cats or eagles in general, that is any cat or eagle। ठीक है, ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਦੋਨੋਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਆਰਟੀਕਲ ਏ ਤੇ ਐਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬਟ ਇੱਥੇ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਕੈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਈਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਆ, ਜਨਰਲੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਈਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ, ਏ ਤੇ ਐਨ ਆਰਟੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਨ ਦ ਮੀਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਫॉर ਐਨੀ ਵਨ ਔਰ ਐਨੀਥਿੰਗ ਸਪੈਸ਼ਲ। ਆ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਆ, ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਵੀ ਮਸਟ ਯੂਜ਼ ਐਨ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਆਰਟੀਕਲ ਏ ਔਰ ਐਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਸਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਆਰਟੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ, ਏ ਜਾਂ ਐਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਏ ਤੇ ਐਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਏ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਬਿਫੋਰ ਵਰਡਸ ਦੈਟ ਬਿਗਨ ਵਿਦ ਦ ਸਾਊਂਡ ਆਫ ਅ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਸੱਚ ਐਜ਼ ਪੀ ਟੀ ਡੀ ਐਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਸਾਊਂਡ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀ ਟੀ ਡੀ ਐਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਸਾਊਂਡਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਐਨ ਇਜ਼ ਬਿਫੋਰ ਵਰਡਸ ਬਿਗਨਿੰਗ ਵਿਦ ਦ ਸਾਊਂਡ ਆਫ ਅ ਵੋਵਲ ਲਾਈਕ ਏ ਈ ਆਈ ਓ ਯੂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵੋਵਲ ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਏ ਈ ਆਈ ਓ ਯੂ ਇਹ 5 ਵੋਵਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੋਵਲ ਸਾਊਂਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਨ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਏ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਆਲਫਾਬੈਟਸ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, 26 ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਹੋ ਗਏ ਵੋਵਲਸ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਸਾਰੇ 5। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿੰਨੇ ਬਚ ਗਏ, ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਸਾਊਂਡਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਚ ਗਈਆਂ, 21। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ 21 ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਸਾਊਂਡਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ 5 ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਵੋਵਲ ਸਾਊਂਡ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਵੋਵਲਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਏ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਈ ਜਾਂ ਆਈ ਜਾਂ ਓ ਜਾਂ ਯੂ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਐਨ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਦੇਖਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਹੋਵੇ, ਅ ਦੀ, ਈ ਦੀ,
IOU। एक बारी मैं तुहानूं एक स्लाइड दिखा दिंदी, उस 'चों तुसीं चंगी तरह देखो, क्लीयर कर लिओ। देखो हुण आ हैगियां तुहाडीआं वोवल साउंड्स है ना, जिस तरह मैं तुहानूं पिछे दस्सिया सी कि जिहड़े वोवल आ वो 5 हुंदे आ ते वोवल साउंड जिहड़ियां हुंदियां वो तुसीं आ स्लाइड 'च चंगी तरह तुसीं समझ सकदे आ। देखो सब तो पहलां हैगी है ना, इहदी साउंड ए आ यूज़ होए वर्ड्स एनीमल है ना, एनीमल, आंट, मैन, इन्हां 'च ये तिन्ने हो गए ना यूज़। देखो उस तो बाद हैगी ई दी देख लो, फादर, करेक्ट, करेक्ट है ना, रिपब्लिक, काइंड, इत्थे दी यूज़ हुई आ, इत्थे ए दी, करेक्ट है ना, इत्थे रिपब्लिक री है ना, उत्थे काइंड ई दी ई, ठीक है। हुण अगे सी आई दी यूज़ हुई, इत्थे देख लो स है ना, इज है ना ई, इत्थे प्रीशियस ई ते फाइंड आई दी है ना, फाइंड आइन है ना, फाइंड इतना ये होगी आई दी। अगे देखो ओ, इत्थे आ गई लव, ओ दी होगी ना लव, गो ओ दी होगी गो, नॉर्थ ओ दी है ना, ओ दी आवाज आती है ना नॉर्थ। उस तो बाद ऊ, मून ओ दी आती आवाज मून है ना। उस तो बाद ऊ है ना, ऊ दी आवाज देखो पुअर, पुअर है ना आती है ना। इसी तरह नेक्स्ट देखो यू दी साउंड पहला आ गई अप, फिर ऊ रूपी, देन ऊ यूज है ना। उस तो बाद यू एक्यूज, ते उस तो बाद यू दी श्योर है ना, यू श्योर, ठीक है। जिहड़ा ये स्लाइड है इनू चंगी तरह नोट डाउन कर लो कॉपीज़ ते ये सारियां साउंड्स पहला याद कर लो, वोवल साउंड्स। जे तुहानूं ये सारियां साउंड्स याद हो गई तो फिर तुसीं कितों भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि कित्थे आपां एन यूज़ करना, ठीक है। क्लीयर हो जाएगा फिर तुहानूं चंगी तरह। हाँ जी, हुण तुसीं देख ले है ना वोवल साउंड्स, चंगी तरह देख ले ना हुण, ते उन्हां नूं चंगी तरह याद कर लिओ। हाँ जी, हुण नैक्सट आ गया एग्जाम्पल्स कॉन्सोनेंट साउंड्स, ठीक है। हुण मैं तुहानूं दस्सिया सी कि कॉन्सोनेंट साउंड जिहड़ियां उन्हां दे नाल यूज़ हुंदा, ठीक है। देख लो हाँ जी, कॉन्सोनेंट साउंड जिहड़ियां हुंदियां किन्ने हुंदे टोटल 21 है ना। ते आ नीचे एग्जाम्पल दित्तियां होईयां कॉन्सोनेंट साउंड दी। नंबर 1 कैट, नंबर 2 अ पेन, नंबर 3 अ यूरोपियन, नंबर 4 अ काऊ, नंबर 5 अ हैन। हाँ जी, हुण तुसीं देखिया इत्थे हुण सी है ना, सी की है कॉन्सोनेंट साउंड, इसलिए की लगा इत्थे भी पी, ठीक है लग गया। हुण इत्थे तुसीं ये कन्फ्यूज ना होइओ कि इत्थे तो अगे ई लग्या होया भी ई तो वोवल हुंदा है ना, तो इस करके इत्थे एन लगूगा। नहीं, तुसीं इहदी की देखनी है, साउंड देखनी है। जदों तुसीं इस वर्ड नूं बोलोगे है ना तो किस तरह बोलते हो आपां यूरोपियन, तो किहदी आवाज़ आउंदी है य दी है ना, ये दी आवाज़ आउंदी है, इस करके इत्थे ए लगना नाल एन नहीं। नैक्सट इज़ अ काऊ है ना, काऊ च भी सी आ कॉन्सोनेंट है इसलिए उस तो बाद हैन है ना, हैन। क्लीयर हो गया। मतलब हम जिन्नियां भी कॉन्सोनेंट साउंड है सारियां दे नाल की लगना ए। नैक्सट देखते हैं आपां वोवल साउंड दी एग्जाम्पल है ये आपां ऑलरेडी कीतियां हुई हैं, फिर भी देख लो एक बारी। फर्स्ट इज़ एन एप्पल, नंबर 2 एन ऑनेस्ट मैन। हुण इत्थे भी कन्फ्यूज नहीं होना, अगे एच आ ऑनेस्ट दे अगे एच है ना, बट एच की है साइलेंट है, साउंड किहदी आंदी आ ओ है ना। आपां की बोलते हैं ना ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट मैन, ठीक है। आपां वोवल साउंड नूं फॉलो करना, ठीक है। नैक्सट इज़ एन अम्ब्रेला, नैक्सट इज़ एन आवर, नैक्सट इज़ एन एग। क्लीयर हो गया। हुण तुहानूं वोवल ते कॉन्सोनेंट्स सारे क्लीयर हो गए ना भी वोवल्स किहड़े किहड़े हुंदे आ, कॉन्सोनेंट्स किहड़े हुंदे आ, वोवल साउंड्स किहड़ियां हुंदियां, ठीक है। हाँ जी, हुण नैक्सट आ गया द। ऑन द अदर हैंड द इज़ अ डेफिनिट आर्टिकल। कहते हुण आपां 3 सिंगुलर देखे सीगे आर्टिकल है ना, इन्हां विचों आपां 2 तो ऑलरेडी कर लए ते एन। हुण 3rd नंबर वाला हैगा द, ठीक है। द नूं किहड़ा आपां आर्टिकल की कहंदे इहनूं डेफिनिट आर्टिकल।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ 2 ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਏ ਤੇ ਐਨ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਸੀਗੇ? ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਆਰਟੀਕਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਆਰਟੀਕਲਸ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਏ ਐਂਡ ਐਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਡੈਫੀਨਿਟ ਆਰਟੀਕਲ ਕਿਹੜਾ ਆ? ਦ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਦੈਟ ਦ ਸਪੀਕਰ ਇਜ਼ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਅ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਨਾਊਨ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੀਕਰ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਨਾਊਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦ ਮੇਨਲੀ ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨੋਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਪੋਜ਼ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਐਸ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਚੱਲਾਂ ਅੰਦਰ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਸਨ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇਮ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦ ਮੈਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਹੈ ਨਾ, ਨੋਨ ਹੈ ਆਪਾਂ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਪੋਜ਼ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਬਾਹਰ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੌਣ ਆ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਬਾਹਰ, ਮੈਨ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਅ ਮੈਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅ ਮੈਨ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਸਨ ਉਹੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਮਨਲੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਹੀ ਵੈਂਟ ਟੂ ਦ ਬੈਸਟ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਇਨ ਦ ਸਿਟੀ। ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕਿਹੜਾ ਆ। ਅੱਗੇ ਦ ਕਿਟਨ ਇਜ਼ ਮਿਊਇੰਗ ਟੂ ਲਾਊਡਲੀ। ਜਿਹੜਾ ਬਲੂੰਗੜਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ? ਦ। ਹੀਅਰ ਦ ਸਪੀਕਰ ਇਜ਼ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਅ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕਿਟਨ ਐਂਡ ਅ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪੀਕਰ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਿਚਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਵਨ ਐਨੀਮਲ ਔਰ ਪਲੇਸ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਐਨੀਮਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਪਲੇਸ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ ਆ। ਇਨ ਸੱਚ ਅ ਕੇਸ ਯੂ ਮਸਟ ਯੂਜ਼ ਅ ਡੈਫੀਨਿਟ ਆਰਟੀਕਲ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨਿਟ ਆਰਟੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਦ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਐਕਟੀਵਿਟੀ 7। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਚੂਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ 3 ਆਪਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਪੁੱਟ ਅ ਟਿਕ ਔਨ ਦ ਰਾਈਟ ਵਨ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਆਰਟੀਕਲਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲਸ ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਿ 3 ਹੁੰਦੇ ਆ, ਏ, ਐਨ ਅਤੇ ਦ। ਠੀਕ ਹੈ, ਏ ਅਤੇ ਐਨ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਆਰਟੀਕਲ ਅਤੇ ਦ ਡੈਫੀਨਿਟ ਆਰਟੀਕਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਏ ਅਤੇ ਐਨ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਕ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ। ਏ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਸਾਊਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਐਨ ਵੋਵਲ ਸਾਊਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੀ ਦੱਸਿਆ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਚੀਜ਼, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਦ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ। 1-2 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਨੰਬਰ 1, ਆਈ ਹੈਵ ਡੈਸ਼ ਗੁੱਡ ਆਈਡੀਆ। ਸਪੋਜ਼ ਇੱਥੇ 3 ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਏ, ਐਨ ਅਤੇ ਦ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਈ ਹੈਵ ਡੈਸ਼ ਗੁੱਡ ਆਈਡੀਆ। ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਆਏਗਾ, ਜਾਂ ਆਈ ਹੈਵ ਐਨ ਆਏਗਾ, ਜਾਂ ਆਈ ਹੈਵ ਦ ਆਏਗਾ। ਕੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਊਨ ਆ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਗੁੱਡ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆ? ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਏਗਾ ਫਿਰ? ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ ਆਈਡੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਆਈ? ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਨੰਬਰ 2, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡੈਸ਼ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਟੋਏ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆ ਵੀ 3 ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਆ? ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆ? ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਏਗਾ ਫਿਰ? ਵੋਵਲ ਸਾਊਂਡ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਐਨ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਟੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਖੁਦ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣੇ ਆ।
थर्ड नंबर वाला आई हैव कैप्ट द बैग इन डैश कबर्ड, ਇਹ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ देखियो ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਸਕਦਾ ध्यान ਦੇ ਨਾਲ। नैक्सट हैगा डू द शर्मन्स हैव एन और द ब्लू कार, है ना, देखियो किहड़ा आ सकदा। नंबर 5 द वाटर इन डैश इज़ डर्टी, ए एन या द। अगे आ गया नंबर 6 ही हैड पीस ऑफ चॉकलेट, ठीक है, इन्हां विचों फाइंड आउट करियो। नैक्सट की हैगा आई लाइक टू ईट डैश एग एवरी डे। नैक्सट हैगा शी हैज़ डैश गुड हैबिट ऑफ ब्रशिंग हर टीथ ट्वाइस अ डे। नंबर 9 राघव लाइक्स टू वॉक इन रेन। हाँ जी। नंबर 10 राधा प्लेज गेम ऑफ चैस एवरी डे, ठीक है। हुण बस जे तुसीं थोड़ा जिहा ध्यान ना करोगे, ठीक है, तो तुसीं इन्हां नूं अपने आप ईजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ओके। हाँ जी, नैक्सट देखते हैं। नैक्सट आ गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स आर ऑल्सो यूज्ड एज डिटर्मिनर इन इंग्लिश। हाँ जी, हुण डेमोन्स्ट्रेटिव की हुंदे आ, दीज आर यूज्ड ईदर एज अ प्रोनाउन और एज अ डिटर्मिनर, ठीक है। जिहड़े डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हुंदे आ वो भी एक तरह नाल डिटर्मिनर्स ही हुंदे आ, ठीक है, ते उन्हां नूं आपां प्रोनाउन की जगह भी यूज़ करते हैं, है ना, ਜਾਂ तो वो प्रोनाउन की तरह यूज़ होंगे, ठीक है, ਜਾਂ फिर डिटर्मिनर दी। तो ये देख लो किहड़े किहड़े होंगे आ, दे आर दिस दैट दीज एंड दोज, ठीक है, 4 टाइप्स के हो गए ये, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव आर यूज इन अ सिचुएशन इन विच द स्पीकर कैन पॉइंट टू एन आइटम। हाँ जी, हुण जिहड़े डेमोन्स्ट्रेटिव हैगे आ वो किदों यूज़ होंदे आ, जदों कोई स्पीकर जिहड़ा हैगा, है ना, इस स्थिति च यूज़ करदा जदों वो किसी चीज़ दे वल पॉइंट आउट करदा, किसी चीज़ दे वल इशारा करदा, ठीक है, उत्थे आपां डेमोन्स्ट्रेटिव जिहड़े ये वाले आ एडजेक्टिव वो यूज़ करने आ, ठीक है। हुण ये तुसीं ध्यान रखना कि कित्थे इहदा पहला क्लीयर चलो यही कर लो कि दिस दैट जां दीज ते दोज इहदा मतलब की हुंदा, ठीक है। सपोज जिहड़ा दिस आ ते दैट आ, ठीक है, ये दोनों ही जिहड़े आ, ठीक है, सिंगुलर नाउन दे नाल यूज़ हुंदे आ, ते जिहड़े आ गए दीज ते दोज ये दोनों ही प्लूरल दे नाल यूज़ हुंदे आ, ठीक है, आ दीज ते दोज। हुण जिहड़ा दिस दा मतलब आ, इहदा मतलब कि जदों अपने कोई चीज़ नेड़े पई आ, है ना, आप एक चीज़ पई सिंगुलर पे आ मतलब, ते उदों आपां कह दिंदे दिस, है ना, ते जदों ओही चीज़ दूर आ ते सिंगुलर आ, है ना, ते उदों आपां की कह दिंदे आ दैट, ठीक है। जदों नेड़े आ एक उदों दिस, जदों दूर आ एक चीज़, ठीक है, वो की आ दैट आ। सेम इसी तरह जदों अपने नेड़े कुछ पईयां चीज़ां ज़्यादा पईयां, है ना, प्लूरल हैगे आ, ते उदों आपां कह दिंदे दीज, ते जे अपने तो दूर हैगियां, है ना, ज़्यादा चीज़ां हैगियां प्लूरल हैगियां तां आपां कह दिंदे आ दोज। बस इन्हां दा इदां ही मीनिंग याद रख लो कि दिस नेड़े दे लई सिंगुलर दे लई ते दूर दे लई दैट, ते दीज नेड़े ज़्यादा चीज़ां दे लई प्लूरल दे लई ते दूर दे लई दोज। इस तरीके नाल याद रख लो। हाँ जी, नंबर 1 डू यू वॉन्ट दिस पीस ऑफ केक, ठीक है। हुण इत्थे की सीगा, हाँ जी, हुण इत्थे की सीगा अ पीस ऑफ केक, है ना, डू यू वॉन्ट दिस पीस ऑफ केक, हुण आ पीस ऑफ केक, ठीक है, सिंगुलर हो गया, है ना, तो इत्थे की आ गया दिस। नंबर 2 आई डोंट वॉन्ट टू वॉच दैट मूवी, ठीक है, इत्थे दैट लग गया। नंबर 3 दीज ब्लैक ग्रेप्स आर सोर, ठीक है, भी ये जिहड़े ग्रेप्स हैं ये की आ खट्टे आ। नंबर 4 ही वॉन्टेड टू हायर दोज बॉयज़ फॉर द जॉब, भी वो उन्हां लड़कियां नूं हायर करना चाहुंदा आ जॉब दे लई, लेना चाहुंदा आ, ठीक है। दिस एंड दीज पॉइंट टू आइटम्स क्लोज टू अस, वही चीज़ आ गई ना, मैं तुहानूं दस्सिया सीगा कि दिस ते दीज ये दोनों जिहड़े वर्ड आ ये उन्हां चीज़ां वल पॉइंट आउट करदे आ जिहड़ियां साडे क्लोज हुंदियां, नेड़े हुंदियां, ठीक है, ते दैट ते दोज, ठीक है, ये उन्होंने चीज़ों बारे दसदे आपां नूं जिहड़ियां फार अवे मीनस दूर हुंदियां। नोट ऑल्सो दिस एंड दैट आर सिंगुलर, ठीक है, वही चीज़ कि दिस ते दैट की है सिंगुलर है, वाइल दीज एंड दोज की है प्लूरल है ना।
ओके, क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो एक्टिविटी 8, लेट अस हेल्प रिचर्ड डिस्क्राइब हिज ऑफिस। हाँ जी, हुण आ ऑफिस का सीन हैगा तो इत्थे रिचर्ड बैठा परसन, ठीक है, आ परसन बैठा, इन्हां दा नाम की है रिचर्ड, तो आ इन्हां दा ऑफिस है, ठीक है। ओके, तो हुण वो कहंदे तुसीं की करो, लैट अस हैल्प रिचर्ड डिस्क्राइब हिज ऑफिस, तो तुसीं रिचर्ड की हैल्प करो ਉਹਦੇ ऑफिस ਨੂੰ डिस्क्राइब ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ऑफिस ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਰਾਈਟ ਦਿਸ ਔਰ ਦੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਦਿਸ ਜਾਂ ਦੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨੇੜੇ ਪਈਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਦੈਟ ਤੇ ਦੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਰ ਪਈਆਂ, ठीक है। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक उन्होंने ऑलरेडी आपां नूं कर दित्ती आ, ते बाकी दियां तुसीं करोगे, ठीक है। देख लो एक बारी। हाँ जी, नंबर 2, डैश वुडन कैबिनेट इज़ फॉर हिज पेपर्स। हुण देखो वुडन कैबिनेट कित्थे पिया, कित्थे है वुडन कैबिनेट, आ वाला सी ना, ठीक है। हुण वो कहंदे कि जिहड़ा वुडन कैबिनेट हैगा ओह ओहदे पेपर वगैरह रखण दे लई आ। हुण ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, that wooden cabinet is for his papers। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਨੰਬਰ 3, dash books are about business। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਪਿਕਚਰ 'ਚ ਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰਿਓ, ਪਿਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਬੁੱਕਸ ਪਈਆਂ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪਈਆਂ, ਸ਼ੈਲਫਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਈਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਪਈਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਅਪਸ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਿਓ। Number 3, dash books are about business। Number 4, dash computer is also new। Number 5, dash dustbin is very good। Number 6, dash curtains are very old। Number 7, dash plant is beautiful। Number 8, dash wooden horses are nice। Number 9, dash cage does not have a real bird। Number 10, dash drawers need repair। ठीक है, सारा ऑफिस ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਆਈਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਫਿਲਅਪਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੀਆਂ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਦਿਸ, ਦੀਜ਼, ਦੈਟ, ਦੋਜ਼, ਇਹ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਉਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਹੁਣ ਕੁਆਂਟੀਫਾਇਰਸ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਕੁਆਂਟੀਫਾਇਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੱਚ ਵਰਡ ਔਰ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਵਰਡਸ ਵਿਚ ਆਰ ਯੂਜ਼ਡ ਬਿਫੋਰ ਅ ਨਾਊਨ ਟੂ ਇੰਡੀਕੇਟ द अमाउंट और क्वांटिटी ऑफ द नाउन, ठीक है। हुण जिहड़े क्वांटीफायर हुंदे उन क्वांटिटी दा मतलब ही की हुंदा, क्वांटिटी दा मतलब मात्रा ही हुंदा ना। सो उहदे नाल ही देख लियो, क्वांटीफायर जिहड़े हुंदे आ ਉਹ ਅਜਿਹੇ वर्ड्स हुंदे आ जिहड़े कि किसी नाउन दी क्वांटिटी जां मात्रा जो भी आ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਆ, है ना, भी किन्नी आ ਉਹ, ठीक है। Quantifiers are determiners that indicate how much or how little of the noun is being talked about, ठीक है। कि क्वांटिफायर्स अजिहे डिटर्मिनर्स हुंदे आ जिहड़े कि ये दसदे आ कि नाउन जिहड़ा आ ਉਹ किन्नी ज़्यादा ਜਾਂ किन्नी थोड़ी, ठीक है, ਜਾਂ किस चीज़ ਦੇ बारे ਉਹ ਗੱਲ कर रहा है। they include words such as all, a few and many, ठीक है। कहते कि क्वांटीफायर जिहड़े हुंदे आ उन्हां दे विच आ वाले वर्ड्स आ जांदे आ, जिस तरह ऑल, अ फ्यू जां मैनी, ठीक है। हुण आपां नूं पहलां ये पता होवे ऑल दा मतलब की हुंदा, ऑल दा मतलब सारे, है ना, ते अ फ्यू दा मतलब कुछ, है ना, जां थोड़े, ते मैनी बहुत, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल शी रीड ऑल द बुक्स, ठीक है। नंबर 2, शी लाइक्ड ऑल द स्वीट्स इक्वली। हाँ जी, नंबर 3, a few children like beans, so the school canteen stopped serving beans to them। Number 4, many kittens are taught to hunt by their mothers। हाँ जी, हुण note that all can be used with other determiners to specify which particular item are being discussed, ठीक है। कहते कि हुण इस चीज़ का तुसीं ध्यान रखना कि all जदों यूज़ होएगा, ठीक है, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਟਰਮੀਨਰ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ
ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰੀਡ ਫਸਟ ਨੰਬਰ 'ਚ ਦੇਖੋ ਰੀਡ ਆਲ ਦ ਬੁੱਕਸ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਦ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਡਿਟਰਮੀਨਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਦ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਲ ਜਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਟਰਮੀਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ एग्जाम्पल ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ that is all the books in this pile। ठीक है, in this case the quantifier always comes before the article or demonstrative। ठीक है, ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਂਟੀਫਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਰਟੀਕਲ ਤੋਂ ਜਾਂ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣਾ ਆ। it is also possible to use all alone to refer to items generally as in the second example। हाँ जी, तो कई बार की होंदा कि ऑल जिहड़ा आ वो इकल्ला भी होंदा आ। ठीक है, कुछ आइटम जो आप जनरली किसी चीज़ के बारे गल करते हैं तो उत्थे ऑल कल्ला भी यूज़ होंदा। सैकेंड नंबर ते वैसे इत्थे जिहड़ी सैकेंड नंबर ते एग्जाम्पल आ उत्थे भी द ऐड होया है ना, बट उन्हां दे अकॉर्डिंग इत्थे द नहीं होना चाहिए सी। शी लाइक्ड ऑल स्वीट्स इक्वली। ठीक है, क्योंकि इत्थे मिठाइयां दी गल हो रही सी, सारियां मिठाइयां दी। ठीक है, तो इत्थे ऑल शी लाइक्ड ऑल स्वीट्स इक्वली भी आ सकता। ठीक है, नैक्सट देखो एक्टिविटी 9। हाँ जी, हुण एक्टिविटी 9 दे विच इन द फॉलोइंग सेंटेंस चूज वन ऑफ द ऑप्शनस एंड पुट अ टिक ऑन द राइट वन। हुण ये कहंदे कि तुसीं नीचे वालियां जिहड़ियां फिलअप्स हैगियां उन्हां 'च दो दो ऑप्शन नीचे दित्तियां होईयां ते तुसीं देखना कि कित्थे की आ सकदा। पहला आप एक मिनट ऑप्शनस ही देख लीए। ऑप्शनस दे विच ज़्यादा किहड़े वर्ड हैगे अ फ्यू, अ लिटल, है ना, होर हैगा हाउ मच, हाउ मैनी, अगे है सम ते एनी, ईच, एवरी, है ना, ये वाले वर्ड आ। ठीक है, तो हुण पहला इन्हां दी तुसीं एक बारी क्लीयर कर लो भी इन्हां दा मतलब की हुंदा। अ फ्यू मतलब कुछ। ठीक है, अ लिटल का मतलब भी थोड़ा जिहा। ठीक है, बट जदों तुसीं इहनूं यूज़ करना कित्थे अ फ्यू यूज़ करना ते कित्थे अ लिटल यूज़ करना, उस चीज़ का तुसीं थोड़ा जिहा ध्यान रखना। ठीक है, हुण अ फ्यू कित्थे आना, अ फ्यू आना आ प्लूरल काउंटेबल दे नाल। ठीक है, ओके, ते अ लिटल कित्थे आना, अ लिटल का मतलब की हुंदा थोड़ा जिहा ही, है ना, ते ये आना सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन दे नाल। ठीक है, जिहड़े तां अ फ्यू सी वो आना प्लूरल काउंटेबल दे नाल, ते जिहड़ा हैगा अ लिटल वो आना सिंगुलर अनकाउंटेबल दे नाल। हुण काउंटेबल किहड़े हो गए जिन्हां आपां काउंट कर सकदे हां, है ना, ते अनकाउंटेबल किहड़े हो गए, ठीक है, जिन्हां आपां काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह फस्ट सेंटेंस आ उहदे विच की दित्ता होया आपां नूं, जिस तरह हुण फस्ट सेंटेंस आ उहदे विच आपां नूं की दित्ता होया इत्थे बनानाज, है ना, बनानाज की आ प्लूरल आ काउंटेबल आ, है ना, तो इसलिए इत्थे की आएगा अ फ्यू। देयर आर ओनली अ फ्यू बनानाज लैफ्ट इन द बॉक्स, कि बॉक्स दे विच थोड़े जे बनानाज रह गए, है ना। ठीक है, हुण दूसरी एग्जाम्पल एक बारी देख लो। वी नीड डैश बटर फॉर दिस केक। ठीक है, हुण इत्थे की आएगा, हुण इत्थे की है बटर, बटर की आ अनकाउंटेबल आ। ठीक है, सिंगुलर अनकाउंटेबल है ना, तो इसलिए उत्थे की आएगा अ लिटल। बस इन्हां च आह थोड़ा जिहा डिफरेंस हैगा कि उपर तां प्लूरल जिथे होणगे, ठीक है, काउंटेबल उत्थे की आना अ फ्यू, ते जिथे सिंगुलर अनकाउंटेबल होणगे जिन्हों आपां काउंट नहीं कर सकते। सपोज हुण बटर आ, बटर का की मतलब हुंदा मक्खन, उन्होंने आपां काउंट नहीं ना कर सकते, उत्थे की आ गया अ लिटल। ठीक है, हुण नंबर 3 देख लो, ये तुसीं अपने आप करोगे। नंबर 3 देयर आर ओनली डैश डेज लैफ्ट टू गिव द रिपोर्ट्स। हुण आ वाला देख लियो, तुहानूं आइडिया हो जाना कि अ फ्यू आना कि अ लिटल आना। नंबर 4 आई बॉट डैश एप्पल्स फ्रॉम दिस शॉप। हुण इत्थे भी देख लियो अ फ्यू जां अ लिटल। ठीक है, जिहड़ियां चीज़ां तुसीं काउंट कर सकते हैं उत्थे तां फ्यू कर दो, जिहड़ियां नहीं काउंट कर सकते उत्थे अ लिटल कर दिओ। हाँ जी, हुण नैक्सट देख लो। हाँ जी, हाउ मच ते हाउ मैनी।
हुण हाउ मच दा मतलब भी किन्ना है ना, ठीक है। ये भी सेम चीज़ ही है कि हाउ मच उत्थे आना जिथे अनकाउंटेबल होवे, सिंगुलर अनकाउंटेबल, ठीक है। तो इत्थे हाउ मैनी कित्थे आना जिथे प्लूरल काउंटेबल होणगे उत्थे, ठीक है। हुण पीपल की आ, प्लूरल भी आ, काउंटेबल भी आ, तो इसलिए उत्थे की आऊगा हाउ मैनी पीपल लिव इन योर सिटी। अगे हैगा डैश वाटर इज़ देयर इन द सी। हुण इत्थे की है वाटर, तो इसलिए इत्थे की आएगा हाउ मच वाटर। हुण अगले तुसी देखो 7 नंबर, वी नीड डैश बनानास, ठीक है। हुण न्यू वर्ड होर दो देते उन्होंने, एक सम देता एक एनी देता। हुण सम का मतलब की हुंदा कुछ, तो एनी का मतलब कोई नहीं, ठीक है। तो हुण एक चीज़ याद रखनी है कि सम जो यूज़ होएगा वो पॉजिटिव सेंटेंस के लिए यूज़ होएगा, तो एनी जो यूज़ होएगा वो नैगेटिवली, क्योंकि एनी का तो मतलब भी की हुंदा नॉट हुंदा है ना, ठीक है। तो हुण इत्थे की आएगा फिर वी नीड सम बनानास। हुण नैक्सट वाली सेम ही आ, तुसी आप करनी है, यू कैंट बाय डैश ऑरेंजिस इन दिस शॉप, ठीक है। हुण तुसी देखना भी इत्थे की आ सकदा, सम आएगा कि एनी आएगा, तो इनू ध्यान नाल देख लिओ अगे कैंट नू। हाँ जी, नैक्सट हैगा देयर इज़ अ बस डैश 2 आवर्स, ठीक है। हुण इत्थे ईच ते एवरी इन्हां दोनों चों कोई एक यूज़ करना, ठीक है। ईच का मतलब की हुंदा हर एक, ठीक है, तो एवरी का मतलब की हुंदा हर कोई, ठीक है। हुण इन्हां दोनों चों तुसीं देखना इत्थे की आ सकदा। अगे नंबर 10, वी इंजॉयड डैश मिनट ऑफ आवर हॉलीडेज़। हुण इहदे च भी की आना ईच जां एवरी, इन्हां दोनों का तुहानूं मैं मीनिंग क्लीयर करता, तुसीं सोचना भी इत्थे की आ सकदा इन्हां दोनों च 9 ते 10 च, ठीक है। ईच का मतलब हर एक, तो एवरी का मतलब हर कोई, ठीक है। हाँ जी, हुण नैक्सट है कि पोजेसिव एडजेक्टिव्स। When talking about a noun that belongs to someone or something, we use possessive adjectives to show ownership, ठीक है। हुण जदों आपां किसी इस तरह के नाउन बारे गल करते हैं जिथे आपां ये दिखाना हुंदा कि यह चीज़ जिहड़ी आ ओह किस दी आ, ठीक है, तो उदों आपां पोजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं, जिहदे नाल आपां नूं पता लगदा कि किसी का संबंध किहदे नाल आ, ठीक है, कि कोई चीज़ किहदे नाल संबंध रखदी आ जां किहदी हैगी आ ओह, है ना, भी उहदे उपर किहदा हक है जां किहदी मलकीयत है, ठीक है। पोजेसिव एडजेक्टिव्स इंक्लूड माई, योर, हिज, हर, इट्स, आवर एंड देयर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। हुण पोजेसिव एडजेक्टिव्स दे विच की आ जांदे आ माई, योर, हिज, है ना, मेरा, तुहाडा, उसदा, ते जे लड़के लई तां हिज, जे लड़की दा तां हर, है ना, इट्स बेस दा, है ना, किसी चीज़ का, नॉन लिविंग लिए भी यूज़ हो जाता, लिविंग लिए भी हो जाता, है ना, आवर साडा, देयर उन्हां दा। हुण नंबर 1, वेयर इज़ योर मदर, है ना, इत्थे हुण योर की आ पोजेसिव एडजेक्टिव। नंबर 2, द डॉग ग्राउल्ड एंड शोड इट्स टीथ, है ना, भी डॉग ने उहदे टीथ दिखाए ते गुर्राया। नंबर 3, माई बेस्ट फ्रेंड लव्स कैट, इत्थे की आ माई। नंबर 4, विच वन इज़ हिज कार, ठीक है, तो हिज आ गया। नंबर 5, स्पीकिंग द ट्रूथ इज़ हर बेस्ट क्वालिटी। नंबर 6, इन द ऑटम सीजन ट्रीज शेड देयर लीव्स। नंबर 7, इट्स आवर हाउस, ठीक है। तो हुण इहदे च जिहड़े भी आ बोल्ड है सारे, ये तुसीं पढ़ ही लिया कि सारे की है पोजेसिव एडजेक्टिव। ये सारे वर्ड्स दिखाते हैं भी किसी का जिहड़ा नाउन दे नाल की संबंध हैगा, ठीक है। द पोजेसिव एडजेक्टिव डिटर्मिनर कम्स बिफोर द नाउन, तो जिहड़े ये पोजेसिव एडजेक्टिव्स हुंदे आ ये कदों लगदे आ नाउन तो पहला, ठीक है। हुण नैक्सट है कि तुहाडी एक्टिविटी 10, कंप्लीट द फॉलोइंग लैटर रिटन बाय अशोक टू दीपक। हुण तुसीं ये नीचे वाली जिहड़ी लैटर लिखी हुई है अशोक ने लिखी है दीपक नूं, ठीक है। फिल इन द करैक्ट पोजेसिव एडजेक्टिव, तुसीं इहनूं कंप्लीट करना ते इहदे च फिल की करना पोजेसिव एडजेक्टिव्स जिहड़े आपां हुणे उपर रीड कीते आ, ठीक है। माई, योर, हिज, हर, है ना, ये सारे इन्हां दे विच्चों कित्थे की आ सकदा, सूटेबल कित्थे की हैगा वो आपां इत्थे फिल करना, ठीक है। डैश नेम इज़ अशोक, हुण दीपक नूं लिखिआ उहने, है ना, डैश नेम इज़ अशोक, की लिखूगा वो कि माई नेम इज़ अशोक, इत्थे तां माई आ गया, ठीक है। बाकी हुण तुसीं आइडिया लगाना कित्थे की किहड़ा पोजेसिव आ सकदा, ठीक है।
किहड़ा possessive adjective आ सकदा। This is dash friend Satish. He is 13 years old. Dash sister is 9. They have got a pet. Dash pet is a dog. Dash name is Caesar. Satish and I go to the same school. There are 600 boys and girls in Dash school. Satish's class teacher's name is Mrs. Sharma. She has got a pet too. Dash pet is a cat. Our class teacher is Mr. Gupta. I like Dash lessons. He has 3 dogs. The dogs love to play in Dash garden. Now I have a question for you. What is Dash pet? Yours Ashok। ठीक है, तुसी हुण इन्हां च खुद फिल करने आ possessive adjectives। ठीक है, let us look at determiners once again. The teacher must explain the following after the students have completed the activities on determiners। हाँ जी, हुण कहंदे कि एक बारी दोबारा तो देख लो determiners ऑलरेडी ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ पढ़ ਲਏ ਆ। ठीक है, ਤੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਟਰਮੀਨਰਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨੰਬਰ 1, ਡਿਟਰਮੀਨਰਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਕਮ ਫਸਟ ਇਨ ਦ ਨਾउन ਫਰੇਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਡਿਟਰਮੀਨਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾउन ਫਰੇਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨੰਬਰ 2, ਡਿਟਰਮੀਨਰਸ ਆਰ ਮਸਟ ਵਿਦ ਸਿੰਗੂਲਰ ਨਾउन। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਡਿਟਰਮੀਨਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੰਗੂਲਰ ਨਾउन ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਟੂ ਸਪੀਕ ਅਬਾਊਟ ਅ ਜਨਰਲ ਸਿੰਗੂਲਰ ਨਾउन यूज़ एन इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन। ठीक है, जो आप जनरल सिंगुलर नाउन की गल करते हैं तो उत्थे आप इनडेफिनिट आर्टिकल यूज़ करते हैं ए या एन। टू स्पीक अबाउट अ जनरल प्लूरल नाउन डू नॉट यूज़ अ डिटर्मिनर। तो जो जनरल प्लूरल नाउन की गल होंदी है उदों कोई भी डिटर्मिनर यूज़ नहीं होंदा। टू स्पीक अबाउट अ पर्टिकुलर सिंगुलर नाउन यूज़ अ डेफिनिट आर्टिकल, डेमोनस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव और क्वांटिफायर। ठीक है, तो जो किसी पर्टिकुलर सिंगुलर नाउन की आप गल करते हैं तो उस टाइम पर डेफिनिट आर्टिकल यूज़ होंदा जां डेमोनस्ट्रेटिव एडजेक्टिव जां पोजेसिव एडजेक्टिव जां फिर क्वांटिफायर। लास्ट हैगा टू स्पीक अबाउट अ पर्टिकुलर प्लूरल नाउन यूज़ अ डेफिनिट आर्टिकल, डेमोनस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव और क्वांटिफायर। ठीक है, तो जो पर्टिकुलर किसी प्लूरल नाउन की गल होंदी है उत्थे भी आप ਜਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟ ਆਰਟੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੋਜੈਸਿਵ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਆਂਟੀਫਾਇਰ। ਆ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਉੱਪਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਲਰਨਿੰਗ ਟੂ ਲਿਸਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 11। योर टीचर विल स्पीक 5 words. You will listen to him, her carefully and write the words in the space provided. ठीक है, ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰ ਨੇ 5 words ਬੋਲਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੀਚੇ ਸਪੇਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਣੇ ਆ। ਦੇਅਰ ਆਫਟਰ ਯੂ ਵਿਲ ਰਾਈਟ 3 ਰਾਈਮਿੰਗ ਵਰਡਸ ਫॉर ਈਚ ਇਨ ਦ ਸਪੇਸ ਗਿਵਨ ਅੰਡਰ ਈਚ ਵਰਡ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ 3 ਹੋਰ ਰਾਈਮਿੰਗ ਵਰਡ ਸੇਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿਖਣੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੇਖ ਲਓ। ਨੰਬਰ 1 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਲਾਈਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਲਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ 3 ਵਰਡਸ ਹੋਰ ਲਿਖਤੇ, फाइट, काइट, वाइट, है ना। हुण इत्थे तुहानूं टीचर ने देने आ। ठीक है, फस्ट कॉलम जिहड़ा आ उहदे च तुसीं लिख लेना 1 2 3 4, है ना, नंबरिंग कर लो। उस तो बाद वर्ड 1। ठीक है, इहदे च सब तो उपर तुहानूं दस दिंदी की लिख लो। ठीक है, नंबर 1 दे उपर तां तुसीं लिख लो एक वर्ड लिख लो ड्रिंक। ठीक है, इत्थे लिख लियो, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨੰਬਰਿੰਗ ਕਰ ਲਿਓ 1 2 3 4, ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਓ ਡਰਿੰਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਰਿੰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਵਰਡ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਲਿਖਣੇ ਇੱਥੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖ ਲਓ ਇੱਥੇ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਬੀਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੀਟ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੰਬਰ 3 ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਹੌਟ, ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੇਣੇ ਹੌਟ। ठीक है, हॉट दे नाल दे वर्ड्स इत्थे लिख दो। नंबर 4 ते तुसी लिख दिओ ब्रेव। ठीक है, इत्थे लिख दिओ ब्रेव ते ब्रेव दे नाल दे लिख दिओ इत्थे तुसी लिख दिओ थिक। ठीक है, नंबर 5 ते लिख दो थिक ते थिक दे नाल राइमिंग वर्ड 3 होर इत्थे लिख दिओ नीचे वाली स्पेस च। ठीक है, हाँ जी नैक्सट लर्निंग टू स्पीक पेयर वर्क। Kindness to other people and animals is very important for human beings. ठीक है,
कि जिहड़ी दयालुता हुंदी आ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਦੇ ਲਈ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਵੀ ਮਸਟ ਬੀ ਕਾਈਂਡ ਟੂ ਅਦਰਸ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਆਲੂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਨ ਆਵਰ ਲਾਈਫ ਮੈਨੀ ਪੀਪਲ ਹੈਵ ਬੀਨ ਕਾਈਂਡ ਟੂ ਅਸ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਆਲੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਡੂ ਯੂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਐਨੀ ਕਾਈਂਡ ਐਕਟ ਡਨ ਟੂ ਯੂ ਬਾਈ ਯੂਰ ਨੇਬਰ, ਫਰੈਂਡ, ਮਦਰ, ਅੰਕਲ ਔਰ ਸਟ੍ਰੇਂਜਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ, ਦੋਸਤ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਅੰਕਲ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜਨਬੀ ਨੇ, ਸਟ੍ਰੇਂਜਰ ਮੀਨਸ ਅਜਨਬੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰੋ। ਐਕਟੀਵਿਟੀ 12, ਟੈਲ ਯੂਰ ਪਾਰਟਨਰ ਅਬਾਊਟ ਹਾਊ ਸਮਵਨ ਵਾਜ਼ ਕਾਈਂਡ ਟੂ ਯੂ, ਹਾਊ ਯੂ ਵਰ ਕਾਈਂਡ ਟੂ ਸਮਵਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਆਲੂ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਦਿਆਲੂ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਐਨੀਮਲ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਮ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਵਰਡਸ ਔਰ ਫਰੇਜ਼ਿਸ, ਅਤੇ ਆ ਨੀਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਵਰਡਸ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰ 1 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮਾਈ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਜਾਂ ਫਰੈਂਡ, ਨੰਬਰ 2 ਕਾਈਂਡਨੈਸ, ਨੰਬਰ 3 ਸਿੰਪਥੀ, ਸਿੰਪਥੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਹਮਦਰਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਨੰਬਰ 4 ਵਰਚੂ, ਵਰਚੂ ਨੇਕੀ, ਨੰਬਰ 5 ਮੇਡ ਮੀ ਸਮਾਈਲ, ਨੰਬਰ 6 ਜੈਨਰਸਿਟੀ, ਹੈ ਨਾ, ਜੈਨਰਸਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਦਾਰਤਾ, ਨੰਬਰ 7 ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਗਿਫਟ, ਨੰਬਰ 8 ਵਨ ਮਾਈ ਹਾਰਟ, ਨੰਬਰ 9 ਆਈ ਕੈਂਟ ਫੋਰਗੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਵਾਲੇ ਵਰਡਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਟ, ਓਕੇ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗੀ ਆ ਲਰਨਿੰਗ ਟੂ ਰਾਈਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ, ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਫਾਰਮੈਟ ਆਫ ਰਾਈਟਿੰਗ ਐਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫॉर ਫੀ ਕੰਸੈਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਨੀਚੇ ਫਾਰਮੈਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲਿਖਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਐਡਰੈਸ ਟੂ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਆ ਗਿਆ। ਸਪੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਲਿਖੀ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੁੱਲ ਫੀ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਲਿਖਣੀ ਆ, ਫੀਸ ਮਾਫੀ ਦੀ ਲਿਖਣੀ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨੇਮ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਸਕੂਲ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਡੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿਖਣੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦੀ ਡੇਟ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਸਬਜੈਕਟ, ਸਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫॉर ਫੀ ਕੰਸੈਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਸੈਲੂਟੇਸ਼ਨ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਸਰ ਜਾਂ ਮੈਡਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪਾਰਟ ਬੋਡੀ ਆਫ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਬੋਡੀ ਆਫ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਬੈਕ ਟੂ ਸੇ ਦੈਟ ਆਈ ਐਮ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਫ ਕਲਾਸ 7th ਇਨ ਦਿਸ ਸਕੂਲ, ਆਈ ਐਮ ਅ ਗੁੱਡ ਸਟੂਡੈਂਟ, I always stand first in the class. My parents are poor and they cannot afford to pay full fees. Therefore, I request you to kindly grant me a concession in fee. I shall be really thankful to you. Closing च आ जांदा, thanking you, yours obediently, फिर अपना तुहाडा नेम, क्लास, सैक्शन ते रोल नंबर, ठीक है। हुण जिस तरह तुसीं इत्थे लिखी आ भी मैं 7th क्लास का स्टूडेंट हाँ, मैं एक वधिया बच्चा हाँ, है ना, वधिया विद्यार्थी हाँ, मैं हमेशा क्लास चों फस्ट होना आ, तो मेरे पेरेंट्स गरीब आ, वो मेरी फीस नहीं दे सकते, इसलिए मैं तुहानूं बेनती करदा कि मेरी फीस माफ़ कर दी जाए। मैं तुहाडा बहुत बहुत धन्नवादी होवांगा, ठीक है। तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद, तुहाडा आग्याकारी, ठीक है। इस तरीके नाल तुसीं ये एप्लीकेशन जिहड़ी आ एज इट इज़ एक बारी तुसीं अपने फेयर कॉपीज़ ते लिख लो, उस तो बाद इहनूं याद कर लो, ठीक है। फुल फी कंसैशन दी एप्लीकेशन है। हाँ जी, नैक्सट आ गई तुहाडी खुद करन वाली एक्टिविटी। एक्टिविटी 13, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसीपल रिक्वेस्टिंग हिम और हर टू ग्रांट यू सिक लीव फॉर 3 days। हाँ जी, हुण ये तुसीं उपर जिस तरह तुहानूं फॉर्मेट दिता होया एप्लीकेशन का, उस बेसिस ते तुसीं खुद एप्लीकेशन लिखनी आ, ठीक है। तुसीं अपने स्कूल के प्रिंसीपल नूं लिखनी है, रिक्वेस्ट करनी है कि तुहानूं वो सिक लीव दे लई 3 दिनों के लिए छुट्टी दे देण, ठीक है। बीमारी की छुट्टी के लिए तुसीं लिखना है, ठीक है। हाँ जी, एक बार इत्थों देख लो तुसीं, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, सब तो पहला की आ गया तुहाडा द प्रिंसीपल, ठीक है। उस तो बाद तुसीं अपने इत्थे स्कूल का नाम मैंशन कर लियो,
उस तो बाद अपने स्कूल जिथे है विलेज है ना वो लिख लो। दैन डिस्ट्रिक्ट साइड ते लिख सकते ब्रैकेट च। उस तो बाद तुहाडी उसे दिन की डेट लिख लो, जिस तरह जिथे लिखे हुए May 20th 2020 है ना। तो दैन सबजैक्ट कि सब मतलब ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ पर्पज़ की है लिखन का, वो आ गया ਤੁਹਾਡਾ फॉर सिक लीव। उस तो बाद किनू लिख रहे हो तुसी, सर मैडम है ना। अगे लिख लिया विद ड्यू रिस्पैक्ट आई बैग टू स्टेट दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ 7th A of your school. I have been ill since yesterday. The doctor has advised me for complete rest, so I cannot attend the school. Kindly grant me leave for 3 days. I shall be highly thankful to you for this. Yours obediently। नीचे ਤੁਹਾਡਾ नेम क्लास ਤੇ रोल नंबर। ठीक है भी बेनती ये है कि मैं ਤੁਹਾਡੇ स्कूल ਦੇ ਵਿੱਚ 7th क्लास ਦਾ विद्यार्थी हाँ। मैं कल तो ही बीमार हाँ ਤੇ डॉक्टर ने मैनू सलाह दी है पूरी रेस्ट करने के लिए, इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सकता तो कृपा करके मैनू 3 दिनों की छुट्टी दी जाए। तो मैं ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत धन्यवादी होवांगा, ਤੁਹਾਡਾ आज्ञाकारी। ठीक है नीचे अपना नेम क्लास ਤੇ रोल नंबर मैंशन कर देना तुसी। ठीक है इनू भी फिर कॉपीज़ ते लिखो तो याद कर लो। रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स ऑफ अ 4-line पोएम। हाँ जी हुण नीचे एक 4 लाइन्स की पोएम लिखी हुई है माई होम बेसिस ते। ठीक है माई होम है पोएम का नेम। माई होम इज़ अ ब्रिक हाउस वेयर इट्स वार्म एंड सेफ टू बी। आई विश ऑल द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन कुड बी लकी लाइक मी। ट्रीवर हार्वे। हाँ जी हुणे ट्रीवर हार्वे ने की लिखिया अपने होम के लिए लिखी है पोएम कि जिहड़ा मेरा घर आ वो इट्टां दा बनया होया है ना। वे इट्स वार्म एंड सेफ टू बी ते जिहड़ा कि किस तरह का आ मैनू निग भी दिंदा ते मैनू सुरक्षित भी रखदा है। ठीक है तो मैं विश करदा, ठीक है मैं दुआ करदा कि सारी दुनिया के जिहड़े बच्चे आ ठीक है वो भी मेरी तरह लकी होण, मेरी तरह किस्मत वाले होण। मीनस उन्होंने भी वधिया रहन दे लई घर मिले। ठीक है सो ये सी ट्रीवर हार्वे दी 4 लाइन्स पोएम। ठीक है नेक्स्ट देखते हैं एक्टिविटी 14। यूज सम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रेजेस टू राइट योर ओन 4-line पोएम्स। ठीक है तो हुण तुसी एक्टिविटी की करोगे कि तुसी नीचे वाले वर्ड्स यूज़ करके ठीक है तुसी आप लिखनी है पोएम 4 लाइन्स की। वर्ड देख लो किहड़े किहड़े आ। आई सी ब्लू वायलेट रेड रेनबो कलर्स फ्लावर्स इवनिंग ब्रीज ट्रीज स्वेइंग डांस और एनी अदर यू लाइक। ठीक है जां इस तो इलावा कोई होर भी वर्ड्स तुसी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है तो तुसी आप इत्थे हुण 4 लाइन्स की पोएम बना के लिखनी है। ठीक है सो ट्राई करो। ओके तो ये सी तुहाडी पोएम थोड़ी लेंथी सी बट हो गई कंप्लीट। ठीक है थोड़ा थोड़ा करके एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर लो। ठीक है तो फिर कॉपी ते लिख लो उन्होंने याद कर लो चंगी तरह। ओके सो इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ दैन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट you can get all the notification, and if you like then you can send to your friends also। ठीक है तो जे कोई सजेशन होए तुहाडी ठीक है तुसी लिख सकते हैं। ठीक है ओके स्टूडेंट stay home, stay safe, keep learning. God bless you.